Hello everyone, good morning. Welcome me back in the topic lines and angles. Yesterday we have solved the question based on few types of angle, and today we will continue the same. We are working on corresponding angle, maybe we are working on interior angles and as well as alternate angles. At the same time, linear pair, vertically opposite angle, angles of a triangle, all that also we have to work on in this particular exercise. We are solving question number 6, most important question for your exercise for your school examination. Very, very important. So keep in mind this question and this particular all the questions after that are extremely important for this particular topic. Okay, and once you do this question, that is question number 6, your 90% of the lines and angle will be done. Okay, so let us understand this part first. I have taken all these questions together to explain you a simple construction, and then we will start solving questions one by one. सबसे पहले one thing you understand the meaning of this symbol here given. ये जो symbol है इसका मतलब होता है AB parallel to CD, and this symbol you will find everywhere in this question. You can check that. So it's a different type of symbol. You can check this here as well. Here we have the same and same here. ठीक है, तो that means all these lines are parallel to each other. So keep that in mind. After this, whenever you see this symbol in the diagram, that means the lines are parallel to each other. So if lines are parallel, of course we know that the angles are angles are formed, or some type of angles are formed, like corresponding angle or maybe alternate angle and all. But the basic idea here is, if one transversal is intersecting these two parallel lines like this, only then the angles formed we can name it. Now in this case, which you could see here on the board, there is no one transversal. There are two transversal, like PO and OQ, and those transversals are intersecting that AB and CD. So now in this case, you cannot say any type here. Okay, then how will you find the value of x? तो यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, तो वो मिसिंग वैल्यू, दो वैल्यू जो मिसिंग है वो मैं दे देता हूँ. ये एंगल है 60 डिग्री and this is 40 degree, and you are expected to find the value of x. तो चलो देखते हैं, let's begin. तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चाहिए which will actually allow you to use those type of angle that what we have seen yesterday. तो मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ. We are going to draw a line parallel from point O, maybe xy I'll take it. So here I am taking xy parallel to AB and parallel to CD. As AB parallel to CD, all these are parallel to each other. ये तो clear हो गया? Now orally we will start solving the question. What do you think this 60 degree which is here and the part of this x is it looking like alternate angle? You can please verify it and tell me. Is it looking like alternate angle? So this angle is going to be 60, right? And how about this angle, and here the angle is it going to be 40 degree? So my x value is this complete angle, which is 60 plus 40, and the answer is 100. So here we get the answer as 100. ठीक है, समझ में आ गया? We are not actually solving it, we are just understanding the trick what we are going to use in this question. ठीक है, तो इसको भूल जाओ अभी. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. In this question also the similar concept we have, lines are parallel, but it's not a unique or one transversal there. We have two transversals. So what I have to do, I have to find x. So what I can do, I can draw a line parallel passing through O. Okay, maybe what is it? X comma y or xy. So here we have xy parallel to AB, parallel to CD. It's a simple trick we are using. Okay, we are drawing a line parallel. So I want to find x angle which is outside. इसको हम बोलते हैं reflex angle, right? So this is a reflex angle, you can check here. But this is one part of that reflex angle. check कर लो यहाँ से यहाँ तक. ये एंगल और ये गिवन एंगल, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? ट्राई टू इमेजिन. ऐसे दिख रहा है वो. देखो ये जो दो लाइंस पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल. कुछ रिलेशन है?
at the same side of the transversal. So the relation is interior angle. Exactly correct. So what I know about interior angle, their sum is 180 degree. अगर ये 30 है तो ये हो जाएगा 150 degree. I hope you know that. I'm not solving, I'm just giving you the idea. ठीक है, I'm not solving, we are going to solve later on. ठीक, तो सबसे पहली बात ये तो समझ में आ गई. एंड सिमिलरली दिस 45 डिग्री एंड दिस हियर एंगल इज अगेन द सेम वे इंटीरियर एंगल. ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 135. कैसे आया? इंटीरियर एंगल देयर सप्लीमेंट्री, देयर एडिशन शुड बी 180 डिग्री, सब्ट्रैक्टेड 145 फ्रॉम 180 आई गॉट 135. तो x कितना आएगा यहाँ पे? x कितना आएगा? 150 प्लस 135. I know it is going to be quite a big number, but that's the answer 285, which is the reflex angle. है ना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. आई होप यू गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर है, सेम है. यहाँ पर भी वैसे ही x पूछा है. सो नाउ फ्रॉम हियर आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल. नाउ यू मस्ट हैव गॉट इट. OX इज पैरेलल. पीछे भी ले सकते हो इफ यू वांट, नो प्रॉब्लम, नो इशू. सो नाउ दिस एंगल एंड द गिवन एंगल क्या रिलेशन है? अगेन द इंटीरियर एंगल. देख लो ठीक से. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ठीक से देखते हैं. तो ये एंगल हो जाता है 72. और नीचे वाला एंगल कितना हो जाता है? ये एंगल और ये एंगल में सेम रिलेशन है, 112 है ये. तो 180 माइनस 112 कितना हो जाएगा? 8 एंड 18 माइनस 11 इज 7. 78 इज इट? नो, 68. ठीक है, तो ये हो जाएगा 68. यू कैन इजीली फाइंड द एक्स आंसर बाय एडिंग दिस टू एंगल्स, ग्रीन कलर एंगल्स. दैट्स इट. है ना? समझ में आ रहा है? आई जस्ट होप यू आर अंडरस्टैंड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल दिख रही है. तो अगेन द प्रॉब्लम कि एक ट्रांसवर्सल नहीं है. तो अगर आपको एक ट्रांसवर्सल नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज़ तो करना ही पड़ेगा. तो कैसे यूज़ करेंगे ट्रिक यहाँ पे? चलो देखते हैं. तो दो वेज है इसको सॉल्व करने के. एक है जो बहुत सिंपल है, वो है डायरेक्टली एक्सटेंडिंग दिस वन. इसको अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, इमेजिन करो, जस्ट एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, अगर मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो क्या क्या होता है देखते हैं. ये 110 एंड ये अंदर वाला एंगल लीनियर पेयर दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री. देख लो, समझ लो. ठीक है, अगर ये 130 है तो ये जो एंगल है ये उसका अल्टरनेट है, तो ये भी हो जाएगा 130 डिग्री. अगर वो 130 है तो ये जो अंदर वाला ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है. देख लो ठीक से. एंड नाउ दिस 70, दिस 50 एंड x इज नथिंग बट एंगल ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल के एंगल का एडिशन कितना होता है? 180. यू रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180. कोई भी ट्रायंगल हो उसके एंगल्स का एडिशन एक्स वाई जेड हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये होता ही है. ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर 8th स्टैंडर्ड. ठीक है, इसी का हम लोग अभी यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 प्लस 50 प्लस एक्स. देखो 70 प्लस 50 प्लस एक्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑफकोर्स गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो x आ जाएगा, मुझे ये ऐड करके उधर शिफ्ट कर दिया तो राइट. मैं बस अभी यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ. आई एम नॉट सॉल्विंग इट. सॉल्विंग के लिए अलग से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, डोंट वरी. अलग से हम लोग सॉल्व करने वाले सारे क्वेश्चंस. दूसरा वे क्या है? ड्राइंग अ लाइन पैरेलल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस टू साइड्स. इसको और इसको पैरेलल ड्रॉ किया. अभी देखो ये वे कितना ईजी हो जाता है इफ़ यू वांट टू सी. देखो ये एक्स तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा मुझे 100%. मुझे ये मिल जाएगा, ये वाला एंगल. कितना मिलेगा ये वाला एंगल? देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये वाला एंगल इस 110 का इंटीरियर एंगल है. तो ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री. सिमिलरली ये एंगल जो यहाँ पे है, ये एंगल भी मुझे मिल जाएगा विच इज़ 130 का इंटीरियर, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री. अभी ये टोटल एंगल नथिंग बट एंगल्स एट द लाइन है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑन द लाइन. तो 70 प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180. इवन दैट कैन बी गिविंग यू द आंसर फॉर एक्स. ठीक है, बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? तो ये ज़रा ज़्यादा ईजी है, इजंट इट? तो यू कैन फॉलो दिस, नो प्रॉब्लम.
आगे बढ़ते हैं, मुझे एक्स फाइंड करना है, फिर से वही चीज़, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्सल नहीं है, तो ट्रांसवर्सल हम लोग सिंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा ट्रांसवर्सल, तो दिस इज माई एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एल के एंड ओ एन। अभी मुझे एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये पार्ट ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ये वाला पार्ट ऑफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये अल्टरनेट ऑफ 20 है, तो ये थोड़ा ऑनेस्टली हमें देखना पड़ेगा कि हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ये रहा 20 डिग्री, अल्टरनेट मतलब इक्वल होते हैं, बराबर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पार्ट ऑफ एक्स है, ये पार्ट ऑफ एक्स आई एम गेटिंग यूजिंग 110 का ये इंटीरियर है, मतलब सप्लीमेंट्री है, ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 एंड 20 अगर मैंने ऐड कर दिया, आई एम गोइंग टू गेट माई एक्स आंसर। तो दिस इज द वे हाउ सिंपल ऑल दीज क्वेश्चंस आर। एक ही ट्रिक है, एक ही मेथड है कि एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू टू गिवन लाइंस एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसवर्सल तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये एंगल आपको मिलता है क्या, देखो एक्स तो फाइंड करना है, एक्स इज अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल, दिख रहा है आपको, पार्ट ऑफ ट्राइंगल है, ये दो लाइन्स पैरेलल है, तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये 70 है, तो ये अंदर वाला एंगल भी 70 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल सी बात है, वी ओ ए। अभी 70 प्लस 20 प्लस एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 एंड यू कैन गेट द एक्स वैल्यू। ये है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पर्पसली ऐसे किया है सो दैट आई विल not only teach you one by one how to solve the question, not only teach you the presentation, but I'm even revising the same concept again. That's the reason I'm solving it twice. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, मे बी आई विल टेक इट एज पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे आपसे लिखना होता है कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PQ parallel to AB parallel to CD passing through O, राइट। चलो ये कंस्ट्रक्शन क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट वॉजंट देयर इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू यूज इट, सो दैट्स द रीजन वी हैव टू मेंशन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी अगर एक्स फाइंड करना है तो हमें कौन से एंगल फाइंड करना है, पहले उसको मार्क करते हैं। अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो मुझे एंगल 1 फाइंड करना पड़ेगा एंड एंगल 2 फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 + 2 हम लोग क्या मिल जाएगा, मुझे एक्स मिल जाएगा। तो ठीक है, मार्क कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो एंगल 1 कैसे मिलेगा, तो हाँ हमारा मुझे एंगल दिया नहीं ना इसमें, ये कितना दिया था, 60 दिया था और ये 40 दिया था, सॉरी, ठीक है। तो नाउ एंगल 1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो कम ऑन टेल मी, 1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का अल्टरनेट होगा। तो जस्ट नाम देते हैं यहाँ पे, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देखो है ना, देयरफॉर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने जो मार्क किया था उसमें से एंगल 1 तो मुझे मिल गया, पी ओ क्यू, ठीक है। नाउ पी क्यू पैरेलल टू सी डी, तो इफ पी क्यू पैरेलल टू सी डी मुझे एंगल 2, तो मुझे एंगल 2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एंगल 2 एंड 40 इज क्या है, वो अल्टरनेट है। तो एंगल क्यू ओ, अरे यहाँ पे ऑलरेडी क्यू है, ऑलरेडी पी है, गलती कर दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं क्यू की जगह पे एस लेता हूँ एंड पी की जगह पे टी लेता हूँ। तो क्यू की जगह पे हमने क्या लिया था, एस लिया था, है ना। तो ये क्यू निकाल के यहाँ पे एस लिखना है, ओके डन। तो ए पी ओ इज पी ओ एस, यस करेक्ट। तो पी एस पी क्यू जो है, सॉरी यहाँ पे टी एस आएगा ना यहाँ पे, चलो यहाँ पर भी टी एस आएगा, ठीक है। सो टी एस इज पैरेलल टू सी डी, चेक कर लो, टी एस इज पैरेलल टू सी डी।
सो एस ओ क्यू, ठीक है, एस ओ क्यू इज इक्व टू, देखो ये एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल 2, एस ओ क्यू इज इक्व टू एंगल क्यू ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, ठीक है, ओ क्यू सी विच इज इक्व टू 40 डिग्री। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अभी दोनों एंगल मिल गए, मुझे पी ओ एस मिल गया विच इज 60 डिग्री एंड एस ओ क्यू मिल गया विच इज 40 डिग्री। सो देयर फोर एक्स इज इक्व टू, एक्स क्या है अभी, मतलब पी ओ क्यू है, एक्स इज पी ओ क्यू विच इज इक्व टू पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। तो पी ओ एस कितना है? 60 डिग्री एंड ये कितना है? 40 डिग्री। द टोटल आंसर इज 100 डिग्री। दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कैसे प्रेजेंटेशन का एक एक फ्लो है, वो देखो, लाइन पैरेलल लिखे एंड देन वी रोट द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंड उसका रीजन एंड हमने लास्ट फाइनल आंसर ऐसे लिख लिया। है कुछ नहीं, 3 तो स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको एरेस कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कम ऑन लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन। हमें करना क्या है वो पहले ही हमें याद रखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले ये तो है ही कंस्ट्रक्शन, चलो अभी ठीक से नाम लेते हैं। पी क्यू यहाँ पे चलेगा? हाँ चलेगा, पी क्यू चलेगा। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। क्या क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हमने? पी क्यू ड्रॉ किया विच इज़ पैरेलल टू ए बी विच इज़ पैरेलल टू सी डी पासिंग थ्रू ओ, ओ से पास होने वाला है क्या, राइट? अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला? सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है टू फाइंड एक्स। ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर 1 एंड 2 अगर मैंने फाइंड कर दिया तो आई एम गोइंग टू गेट माई एक्स आंसर आफ्टर एडिंग देम। ठीक है, तो एंगल 1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका है? एंगल 1 एंड 30 जो दिया हुआ है उसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखना है। डायरेक्ट रिलेशन है तो अच्छी बात है क्या डायरेक्ट रिलेशन है? एंगल 1 जो है वो 30 का इंटीरियर है, मतलब क्या है, उन दोनों में एंगल क्या है, उन रिलेशन क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वी हैव योर ए बी, कहाँ बीच बीच में गायब हो जाता है ये, we have here AB parallel to PQ, therefore angle AEO plus angle EOP is equals to 180 degree, रीजन इंटीरियर एंगल। बहुत बार ऐसे हो जाते हैं लोग यहाँ पे इक्वल टू लिख लेते हैं ड्यू टू हैबिट, लेकिन वो इक्वल नहीं है, याद रखो। सो वी हैव EOP, ये एंगल उधर शिफ्ट हो गया 180 माइनस 30, आंसर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल EOP इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये तो क्लियर हो गया, मतलब एंगल 1 आ गया, EOP आ गया। अभी एंगल 2 के लिए हम क्या करेंगे? एंगल 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? PQ पैरेलल टू CD करेंगे, PQ पैरेलल टू CD। तो एंगल 2 अगर मुझे फाइंड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंगल 2 मुझे अगर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा एंगल POF प्लस एंगल OFC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही? और आप लोग 45 लिख के सब्ट्रैक्ट करके यू कैन इजीली फाइंड आउट एंगल कौन सा फाइंड करना है, POF। एंगल POF इज इक्वल टू 180 माइनस 45। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 45? 180 माइनस 45 हो जाएगा 135 में भी, सॉरी 105 या 115, देखते हैं। ये 0 1 5 1 कैरी 8 माइनस 5 3 1, बराबर है ना, 135 डिग्री। ठीक है, तो अभी मुझे x फाइंड करना है। सो देयरफॉर नाउ x इज इक्वल्स टू एंगल EOP, मतलब एंगल 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड POF, एंगल POF, बराबर है। देखो डायग्राम ठीक से देखो, 150 प्लस 135 तो कितना हो जाएगा 285 हो गया। तो आई एम टीचिंग यू द वे हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर। चलो ये खुद से करो। थर्ड वन, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ये रहा आपका एंगल 1, ये रहा आपका एंगल 2, इंटीरियर एंगल है दोनों, एक 108 एंड 102 के, फाइंड करो एंड ऐड कर दो।
फोर्थ में क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ. नाम दे दो, मे बी यहाँ पे ए बी सी डी ई, एंड ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की उसका नाम दिया मे बी इमेजिन पी क्यू. ठीक है. सो नाउ टू फाइंड एक्स वैल्यू, पहले आप लोगों को ये 1 फाइंड करना है. वही तो मैंने बोला था आपको कि पहले क्या फाइंड करना है, उसको नाम दो 1 एंड 2, या फिर कुछ नाम दो. लाइक यहाँ पे मैं 1 एंड 2 दे देता हूँ. तो 1 फाइंड करो, 2 फाइंड करो. 1 2 एंड एक्स के बीच में रिलेशन क्या है, टोटल एंगल इज 180. ये फाइंड करके आपको एक्स फाइंड करना है. ठीक है. प्रेजेंटेशन सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, करोगे खुद से, ट्राई करो. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ भी वही कैटेगरी का है. ये रहा एक पैरेलल लाइन. तो एक्स फाइंड करने के लिए एंगल 1 एंगल 2 फाइंड करना है हमें. एंगल 1 इज अल्टरनेट ऑफ दिस, तो इक्वल हो जाएगा. और एंगल 2 इज इंटीरियर ऑफ 110. तो यू कैन फाइंड द आंसर, राइट. इजीली यू कैन फाइंड इट, सो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना. राइट. 6 क्वेश्चन देखते हैं. 6 क्वेश्चन में क्या करना है, देखो लाइन पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. तो पहले ये एंगल फाइंड करो, इंटीरियर ऑफ 110. फिर इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो वो भी उतना ही हो जाएगा, 70 है. एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180. दैट मीन्स 70 प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड एक्स, क्योंकि ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. बराबर है ना. ट्राई करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो. हाँ, ये 7th एंड 8th हम लोग कल करेंगे. आपको बस आज 6 क्वेश्चन से कंप्लीट करने हैं. ठीक है. तो ठीक से समझो और कंप्लीट करो. कमेंट करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. ठीक है. तो मैं और एक सेशन देता हूँ सेम क्वेश्चन के ऊपर. कल मुझे जो भी डाउट पूछे थे, कुछ बच्चों ने डाउट पूछे थे, आई विल बी क्लियरिंग दोज डाउट, या फिर आई एम सेंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन. एस्टरडेज का जो भी शॉर्ट रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन है, जो आपने नहीं किया या फिर कुछ डाउट थे, आया मुझे वो कमेंट, तो मैं श्योरली आई एम सेंडिंग द सोल्यूशंस टू यू ऑफ योर एस्टरडेज टास्क. सो टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो. ठीक है.